Assalamu alaikum students. Today I will tell you about the terminologies and the definitions used in pathology. Number first is ischemia and hypoxia. What is the difference between ischemia and hypoxia? Hypoxia means less than normal and oxia means oxygenation. Less than normal oxygenation or less than normal oxygen is known as hypoxia. Okay. Definition of hypoxia is reduction of oxygen supply to the tissue. Okay. Causes. Ischemia, which is the loss of blood, very common cause. Inadequate oxygenation of blood, as in pneumonia. Reduced oxygen carrying capacity of blood, as in anemia and carbon monoxide poisoning. Reduced oxygen utilizing capacity of cell by cyanide, known as asphyxia. Okay, this is the definition and causes of hypoxia. Hypoxia is the less amount of oxygen in the blood. Now I am telling you about the ischemia. Isch means suppression and emia means blood. The definition is the loss of blood supply due to impaired arterial flow or reduced venous drainage in tissue. Ischemia causes hypoxia and hypoxia leads to the cell or tissue injury. Flow of blood blocks due to artery. Flow of blood, why the flow of blood is blocked? The flow of blood is blocked due to artery. There is a decreased venous return, which leads to decreased cardiac output and the less oxygen takes to heart. Now the causes of ischemia. Physical agents like trauma, chemical agent like carbon monoxide poisoning or drug poisoning, microbial agent like rickettsia. Rickettsia makes pores and blood can't return to heart. Another cause of ischemia is the genetic factors or genetic defects like sickle cell anemia, in which the RBC becomes like sickle, okay, or hematological factors like thrombi and emboli. Types of hypoxia. Here from this diagram you can see the types of hypoxia and the mechanism of action of hypoxia. Okay, let's see. You can take air फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड लेट्स टू लंग्स. ठीक है, आप एयर इन्वायरमेंट से लेते हैं और कहाँ लेकर जाते हैं? अपने लंग्स में. ठीक है, किसके थ्रू? वेंटिलेशन से. वेंटिलेशन में क्या होता है? जब हमारे पास लंग्स का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा और इन्वायरमेंट का कम होगा तो हमें क्या हो जाएगा? हाइपोक्सिया हो जाएगा. ठीक है, तो लंग्स का अगर पार्शियल प्रेशर कम है और एयर का ज़्यादा है तो तब हमारे पास वेंटिलेशन में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी और हाइपोक्सिया नहीं होगा. लेकिन अगर लंग्स में पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है और एयर में कम है तो क्या हो जाएगा? हाइपोक्सिया हो जाएगा. देन लंग्स से हमारा जो ऑक्सीजन है वो क्या होगी? डिफ्यूज़ होगी ब्लड में. ठीक है, ब्लड में आ जाएगी. अगर हमारे पास लंग्स से डिफ्यूज़ होकर ब्लड में नहीं आ रही ऑक्सीजन तो किस वजह से नहीं आ रही होगी? एनीमिक कंडीशंस में, एनीमिया की वजह से, जिसमें डिक्रीज एचबी लेवल होता है, हेमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से लंग से ब्लड में ऑक्सीजन नहीं आती. ठीक है, इस टाइप ऑफ हाइपोक्सिया को आप एनीमिक हाइपोक्सिया कहते हैं. ठीक है, अगर एयर भी ठीक है, लंग भी ठीक है, लंग से ब्लड में भी आ रही है, तो अगर किसी इस पॉइंट पे अगर ब्लड से टिश्यू यूटिलाइजेशन में नहीं आ रही, अगर ब्लड से टिश्यूज़ में नहीं जा रही तो किस वजह से नहीं जा रही होगी? ड्यू टू डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द टिश्यू विच इज कॉल्ड द ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम एंड दिस टाइप ऑफ हाइपोक्सिया इज कॉल्ड स्टेगनेंट. ठीक है, 3 तरह की आपको मैंने बता दी. एक है हाइपोक्सिया, नंबर सेकंड इज एनीमिक हाइपोक्सिया, नंबर थर्ड इज स्टेगनेंट एंड नंबर फोर्थ इज अगर टिश्यू यूटिलाइजेशन में नहीं आ रही, अगर टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहे हैं टिश्यू में तो फिर क्या होगा आपके पास? ये हिस्टोटॉक्सिक हो जाएगी. ठीक है, हिस्टोटॉक्सिक हम इसे कहेंगे. Loss of oxygen at tissue level. If there is a defect in ventilation, either partial pressure between lung and air is imbalanced, either increase lung partial pressure and decrease air, then cause hypoxia. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, अगर हमारे पास लंग से ब्लड में नहीं जाती, if there is a less amount of RBC, so no oxygen transport in the blood. If decrease RBC, then decrease oxygen, then decrease tissue utilization and causes anemic hypoxia. नंबर थर्ड ये है कि ब्लड सप्लाई टू टिश्यू डिक्रीज ड्यू टू द ब्लॉकेड इन पाइप ड्यू टू प्रॉब्लम इन ट्रांसपोर्ट कॉल्ड स्टेगनेंट हाइपोक्सिया. ठीक है, ये हाइपोक्सिया के हमारे पास कॉजेज ऑफ इस्कीमिया है. देन हाइपोक्सिया स्टार्ट हो गया हमारे पास टॉपिक. ठीक है,
Then if poisoning substance come and decrease amount of oxygen in blood and tissue can't utilize oxygen and hypoxia at tissue level is called histotoxic hypoxia. ठीक है, ये एक्सटर्नल रिस्पायरेशन होगी एयर से लंग से ब्लड में, और अगर ब्लड से टिश्यू यूटिलाइजेशन होगी तो वो इंटरनल रिस्पायरेशन होगी. डिफरेंट नेम्स हैं फॉर हाइपोक्सिया के लिए. ठीक है, देन अर्ली स्टेजेस ऑफ हाइपोक्सिया के साइंस क्या हैं? रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, टेकिकार्डिया, टेकिपनिया. और अगर लेट साइंस है हाइपोक्सिया के तो क्या होगा? ब्रेडिकार्डिया होगा जो कि लेस देन 60 बीट्स पर मिनट होता है, एक्सट्रीम रेस्टलेसनेस, डिसेप्निया एंड साइनोसिस. हियर इज द टाइप्स ऑफ हाइपोक्सिया. मैंने जो पहले भी बता दिया आप लोगों को कि हाइपोक्सिया होगा, इस्कीमिक, स्टेगनेंट हाइपोक्सिया, एनीमिक हाइपोक्सिया एंड हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया. हाइपोक्सीमिक क्या होगा? लो ऑक्सीजन इन योर ब्लड कैन कॉज हाइपोक्सिया. लो ऑक्सीजन इन योर टिश्यूज व्हेन योर ब्लड डज नॉट कैरी इनफ ऑक्सीजन टू योर टिश्यूज टू मीट योर बॉडीज नीड. यहाँ पर हाइपोक्सिया का टॉपिक खत्म हो जाता है.